All right, Kanika, thank you for sharing all those details with us. We're going to leave it there and shift our focus to the national capital, where Delhi's AQI has been fluctuating between very poor and severe categories. Authorities have imposed GRAP Stage 4 measures and which have been in effect across the entire NCR since December 16th due to the deteriorating air quality. And those visuals tell the tale on how bad the situation is once again becoming the national capital. We were on GRAP 3 just about a week ago, but we're back to being on GRAP 4. And the reason for that is again flashing right on your screens. Before we go on, my colleague Mehdi has filed a ground report from the national capital. Take a look. Facing a lot of problem regarding the environmental issues because people are facing the problem of air pollution from a very long time, but right now the temperature is dropping very fastly because there is a sense of rain today in the environment, and in the early morning also there was rain observed in the specific areas of the national capital, and after that there is a drop in temperature in the national capital which has reached to the level of 7 to 8 degrees Celsius, which is expected to drop furthermore in the upcoming days. But talking about the air quality index, it is very poor. It is in the very severe quality right now in the national capital because it has been observed to cross the limits of 400 whether it's Jahangirpur area or the Anand Vihar area, and also on the Indian Gate you can see the environment that the sky is covered with a thick layer of smog as of now, and people are facing a lot of problems due to that. But as you know, the rain is happening and the rain is being observed in the national capital, so there is a chance that due to the changing weather, people of Delhi can have a relief from the air pollution, from the increasing air pollution rather, but the dropping of temperature will be there, and it will be a problem for the people of Delhi NCR because the winters are approaching as of now, and the temperature is dropping very fastly. So as of now, the people of Delhi are facing two major problems, whether it's the air quality pollution, whether it's the dropping of temperature and winter of temperature, and talking about the authorities. Yes, some rules and regulations have been imposed, whether it's GRAP 4. So the ground reality is completely different because the situation on the ground is very alarming. It is 2024, the December month is about to end, but still the problem of air pollution pertains in the national capital. With camera person ग्रैप 4 का एनसीआर में लागू होने से गाजियाबाद में भी दिखा असर। गाजियाबाद में भी स्कूल जो है ऑफलाइन मोड पर बंद करके ऑनलाइन मोड शुरू कर दिए गए हैं। सभी जो है स्कूलों को आदेश कर दिया गया है जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से कि सभी 1 से लेके 12वीं तक के सभी स्कूल ऑनलाइन मोड पर जो है अपने संचालित होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्यूआई की, तो एक्यूआई का अभी भी जो जहां मैं खड़ा हूं ये लोनी में जो है 453 दर्ज किया है, यानी कि कल 426 था तो आज 453 हुआ है। तो इसमें भी अभी बढ़ोतरी हो रही है और प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ये जो टेम्परेचर में गिरावट आई है, कल 16 जो डिग्री था, आज यहाँ पे 15 डिग्री हो गया है। टेम्परेचर में लगातार जो है गिरावट आ रही है और हवा चलने से विजिबिलिटी में थोड़ा असर जरूर पड़ा है, परंतु कोहरे अभी भी छाया हुआ है। कोहरे का असर जो है लगातार देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से एनसीआर में कोहरा जो है यहाँ छाया हुआ है और जिससे रफ्तार जरूर धीमी हुई है। और साथ ही जिन लोगों को ये छोटी छोटी बीमारियां हैं उनके लिए अभी भी परेशानी का सबक बराबर बना हुआ है। उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो किसी भी छोटे बच्चे हों। अब उनको स्कूल जाना बंद हो गया है। घरों में भी जो है स्थिति अच्छी इतनी नहीं है, परंतु जो बाहर घूम रहे हैं उनसे जो है अब कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में मौसम ने करवट ली है। गुरुग्राम में सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही गुरुग्राम में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम में अभी एक्यूआई लेवल 350 के आंकड़े को पार कर चुका है और कहीं ना कहीं गुरुग्राम में प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रैप 4 भी लागू किया है। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आया और बूंदाबांदी और तेज हवाओं का रुख हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदूषण है वो भी छटने लगेगा। और मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में अब ये जो बूंदाबांदी है वो कई दिनों तक
जो है वो लगातार जारी रहेगी, जिसकी वजह से गुरुग्राम में तापमान में तो गिरावट आएगी, साथ ही सुबह और शाम को विजिबिलिटी भी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ता जा रहा था और AQI लेवल 400 के आंकड़े को पार कर चुका था, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार कर रहे थे और तेज हवाओं का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब जो है वो प्रदूषण का जो सॉल्यूशन है वो ये तेज हवाएं और बारिश ही बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में जो प्रदूषण बढ़ा था, तो उसको देखते हुए कृत्रिम बारिश भी गुरुग्राम के कई इलाकों में करवाई गई थी। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, गुरुग्राम के राजीव चौक पर हम मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है। राजीव चौक पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो जाम है उसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जाम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर जाम जैसे हालात हैं, चारों तरफ आप देखेंगे तो जो सड़क है वो गीली हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरुग्राम में सुबह से ही जो है वो बारिश होती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है, तापमान जो है वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। तो गुरुग्राम में जिस तरीके से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस बारिश का इंतजार कई समय से जो है लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दिन के समय जो है वो ठंड पड़ती थी और दोपहर होते होते कहीं ना कहीं धूप जो है वो देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से बदलता हुआ मौसम कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा था। कई बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तो अब जिस तरीके से बारिश हुई है तो प्रदूषण का स्तर तो घटेगा ही, हालांकि मौसम में भी जो है वो बदलाव देख